السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون بائی نور آصف کی ایپیسوڈ نمبر 49 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جے کے نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ کسی تاریک جگہ پر ٹھنڈی زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دماغ کے حصے میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو کھولے خود کو حواس میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آریان خانزادہ نے اسے دماغ کے اس حصے پر پسٹل سے ضرب لگائی تھی جس سے انسان اسی لمحے بے ہوش ہو جاتا ہے اگر ضرب صحیح طریقے سے لگائی جائے۔ جے کے اپنی نیلی آنکھیں کمرے کی تاریکی میں گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ سے محبت کرتی ہو، میں خود گئی تھی اس کے ساتھ کیپ ٹاؤن۔ زرمش کے لفظ اس کے سماعتوں میں گونجتے اس کی نیلی آنکھوں میں وحشت برپا کر گئے تھے۔ جتنی دیر وہ بے ہوش رہا تھا یقیناً اتنی دیر میں وہ آریان خانزادہ اسے نکاح کر چکا ہوگا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے سانس لینے لگا۔ کیپ ٹاؤن سے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹس کے ذریعے پاکستان پہنچا تھا۔ جتنے گارڈ جتنی طاقت وہ استعمال کر سکتا تھا اس نے کی تھی۔ اس کے درجنوں سے زائد گارڈز باہر حیدر اور آریان خانزادہ کے گارڈز کو زدوکب کر چکے تھے مگر بازی پھر بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس بار آریان خانزادہ اس کے 2 ہاتھ آگے چل رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے بہت زیادہ گارڈز کے بعد میں آتے حیدر خان کی حویلی کو چاروں طرف سے اپنی حراست میں لے چکے تھے۔ وہ ان کے تمام گارڈز کو اپنی حراست میں لے چکے تھے، یعنی آریان خانزادہ اس کے مرنے کا یقین کر کے بھی ابھی اس بار ضرورت سے زیادہ چوکنا تھا۔ جے کے تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرتے استزائیہ مسکرا رہا تھا۔ مس زی کے نے اسے دھوکہ دے دیا تھا ورنہ وہ آخری دم تک آریان خانزادہ کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ A woman does not just shut down the man's mind, she brings him to his knees and makes him her dog. ایک عورت مرد کا دماغ ہی نہیں بند کرتی، اسے گھٹنوں پر لا کر سے کتا بنا دیتی ہے۔ جیکی اپنی جینز کی پاکٹ میں سگریٹ لائٹر نکالے تلاش کرتے ہنستے ہوئے سگریٹ لائٹر سے جلائے لبوں میں دبا گیا۔ A woman does not just shut down man's mind, she brings him to his knees and make him her dog. وہ اپنے لفظ دہراتے سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہنستا جا رہا تھا۔ My pure existence has brought to me this state. میرا پاک وجود مجھے اس حال تک لے آیا۔ جے کے زخمی سا ہنستا ہی جا رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ لائٹر اور سگریٹ کو دیکھتے بلند و بانگ کا ہنسا تھا۔ Yes, yes, it's true. A woman turns off man's mind. وہ لائٹر اور سگریٹ کو دیکھتے اپنی تھائس پر ہاتھ مارتے ہنستا جا رہا تھا۔ So most dangerous officer آریان خانزادہ, your mind still closed. وہ لائٹر اور سگریٹ کو پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہنستا جا رہا تھا۔ A woman chess is most dangerous آریان خانزادہ. عورت کا شطرنج سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جے کے نے ہنستے ہوئے لائٹر کی روشنی میں اس تاریک کمرے میں نگاہیں دوڑائی تھی۔ وہاں پڑی کچھ لکڑیوں پر پرانے انبار لگے اخبار کے دستوں کو دیکھتے وہ ہنستا جا رہا تھا۔ جے کے نے زمین سے اٹھتے ان لکڑیوں اور اخباروں کو اکٹھا کرتے انہیں لائٹر سے آگ لگانے کی کوشش کی۔ آگ ان لکڑیوں کو بہت مشکل سے چھو رہی تھی۔ جے کے نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اپنی شرٹ اتاری۔ جیکٹ آریان خانزادہ کے گارڈز اسی کی بے ہوشی میں اتروا چکے تھے جس میں اس کی پسٹل، اس کا موبائل اور کچھ چیزیں تھیں۔ جے کے نے شرٹ اتارتے اسے لائٹر سے جلاتے ہوئے ان لکڑیوں پر پھینکی۔ لکڑیاں بھی اس آگ پکڑنے لگی تھی۔ اخبار کے دستے بھی جلدی سے آگ پکڑ رہے تھے۔ جے کے نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اسے ایک تاریک کمرے میں کچھ بوریاں پڑی نظر آئی تھیں جن میں اناج تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اناج کی بوریوں کی طرف بڑھتے اپنی پین کے اندر چھپائی ہوئی بے حد چھوٹی سی وائن کی بوتل اس آگ پر پھینک چکا تھا۔ آگ مزید بھڑکنے لگی تھی۔ جے کے اس بھڑکتی آگ کو دیکھتے ہنس رہا تھا۔ وہ جانتا تھا آریان خانزادہ جب تک چابی اور ازلام سکندر تک رسائی حاصل نہ کر لیتا وہ تب تک اسے نہیں مار سکتا تھا۔ اس کی چلتی سانسیں روشنا خان کی زندگی کی گواہی تھی۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو چابی نہیں دی ہوگی، نہ وہ اسے کبھی دے سکتی تھی۔ اسے یقین تھا آریان خانزادہ روشنا خان کو نکال کر اسے ادھر ڈال دے گا۔ وہ زرمش کے یقین کو وہ ہیلی کاپٹر میں اپنی باتوں سے پختہ کر آیا تھا۔ جے کے آگ کو دیکھتے ہنستا جا رہا تھا۔ یہ جے کے جانتا تھا، وہ بلتھرس بیسٹ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس ڈارک روم میں زرمش کو بند نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ بات وہ پاک وجود نہیں جانتا تھا۔ جے کے آگ پر اپنی نیلی آنکھیں گاڑے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ Your fear is taking your
impure extends further away from you and you don't even realize it. तुम्हारा खौफ तुम्हारे नापाक वजूद को तुमसे कितना दूर ले जा रहा है तुम जानते ही नहीं हो। जेके जलती आग को देखते अब इस सजाया हंसा था। बाहर खड़ी आर्यान खानजादा के गार्ड्स अंदर से धुआं निकलते देखते जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। जेके आर्यान खानजादा को जिंदा सही सलामत चाहिए था। दो गार्ड्स जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में शदीद धुआं फैला हुआ था। वो लोग खांसते हुए जेके की तलाश में आगे बढ़े। वो आग से थोड़ी दूर बेहोश पड़ा था। वो दोनों गार्ड खांसते हुए जेके की तरफ बढ़े थे। एक गार्ड जेके पर झुका ही था कि जेके इसकी बेल्ट में अड़ती पिस्टल निकालते इसके सर पर पूरी कुव्वत से मारते हुए इसे बेहोश कर चुका था। दूसरा गार्ड दाखिल होते जेके आर्यान खानजादा को जिंदा सही सलामत चाहिए था। दो गार्ड जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। कमरे में शदीद धुआं फैला हुआ था। वो लोग खांसते हुए जेके की तलाश में आगे बढ़ गए। वो आग से थोड़ी दूर बेहोश पड़ा था। वो दोनों गार्ड खांसते हुए जेके की तरफ बढ़ गए थे। एक गार्ड जेके पर झुका ही था। जेके इसकी बेल्ट में अड़सी पिस्टल निकालते इसके सर पर पूरी कुव्वत से मारते हुए इसे बेहोश कर चुका था। दूसरा गार्ड इसी लम्हे अपनी पिस्टल जेके पर ताने इस पर फायर करते जख्मी करने लगा था कि जेके अपना भारी बूथ वाला एक पांव इसकी टांगों के दरमियान मारते हुए दूसरा पांव उसके हाथ पर मार चुका था। पिस्टल इसके हाथ से ज़मीन पर गिरी थी। इसकी दोनों ज़रबें बहुत बेरहम थी। वो गार्ड दर्द से बिलबिलाते हुए पीछे गिरा था। इससे पहले वो मज़ीद चीखता जेके इसकी तरफ बढ़ते इसके मुंह पर हाथ रखते पिस्टल का पिछला हिस्सा इसके सर पर बेदर्दी से मारे इसे शदीद ज़ख्मी कर चुका था। वो बेरहमी से इसके मुंह पर एक हाथ का दबाव डाले दूसरे हाथ से इसके सर पर दी बेदर्दी से पिस्टल से ज़रबे लगाते इसे ज़ख्मी करते बेहोश कर चुका था। जेके को इतनी आसानी से न हराया जा सकता है न काबू किया जा सकता है। वो हंसते हुए अपने वजूद से तमाम कपड़े उतारते आग में फेंक चुका था। इसने गार्ड के कपड़े उतारते हुए पहने हुए थे। इसकी ब्लैक जैकेट पहनते हुए दोनों गार्ड्स की पिस्टल्स इनके मोबाइल फ़ोन जैकेट के पॉकेट में डाले वो तेज़ी से बाहर निकला। अंदर आग लग चुकी है, जल्दी से इन सबको बचाओ। वो जेके भी चल रहा है। बॉस को जेके जिंदा चाहिए। वो बाहर निकलते ही अपनी अपनी आवाज़ को काफ़ी हद तक बदलते हुए चीखा था। वहाँ ऐसे लम्हे हर बोंग मची थी। जेके आर्यान खानजादा के लिए काफ़ी कीमती था। वो सब जानते थे। बाहर खड़े काफ़ी ज़्यादा गार्ड अंदर की तरफ भागे थे। अंदर भड़कती आग काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गई थी। वो लोग जैसे ही कमरे में दाखिल हुए जेके बाहर से कुंडी लगा गया था। जेके जल्दी से वहां से निकलता बाहर गेट के पास आया। वहां भी काफ़ी तादाद में गार्ड्स खड़े थे। इसने एक पिलर के पीछे पनाह लेते हुए इन तमाम गार्ड्स को अपनी पिस्तौल से निशाना लेते इन पर फायर किए। वो लोग इस इब्तदाद के लिए तैयार न थे। कुछ गार्ड्स को वो शदीद जख्मी कर चुका था। बाकी एक दो गार्ड्स बचे थे। इस पर फायर करते इसका निशाना ले रहे थे। वो पिलर के पीछे से छुपे इनका भरपूर मुकाबला कर रहा था। वो इन्हें भी अपनी गोलियों से काफ़ी हद तक जख्मी कर चुका था। जेके हंसते हुए इनके सामने आते ही इनकी टांगों पर फायर कर गया था। वो लोग जख्मी होते ज़मीन पर गिर चुके थे। जेके तेज़ी से इस जख्मी गार्ड की तरफ बढ़ा। इसकी जैकेट से इसने तलाशी लेते एक गाड़ी की चाबी निकाली थी। वो चाबी पकड़े जेके का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। वो जल्दी से वहां खड़ी दो गाड़ियों की तरफ बढ़ा। इसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। अंदर आग वाले कमरे में मौजूद गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ते किसी भी लम्हे बाहर आ सकते थे। तब इसके लिए फिर यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाना था। जेके रिमोट से गाड़ी का लॉक खोलते गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। अब इसकी गाड़ी सवात के खतरनाक सड़कों पर दौड़ रही थी। मिस जीके इज ओनली माइन, माई प्योर एक्सटेंस इज ओनली माइन। वो गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते दर्द और कर्ब से चीखा था। वादा वादा चाहिए। मेरे लाला को कुछ नहीं पता चलेगा। आप इस ब्लड थ्रेस से मेरी जान छुड़वाएंगे, मुझसे निकाह करेंगे। जेके की समातों में इसके लफ्जों की बाजगश्त गूंजी तो वह अब की बार जख्मी सहसा था। अब वो मैंने चेस वो स्टीयरिंग पर पूरी कुवत से मुक्का मारते हुए गुर्राया, आर्यान मुझे बचा लो, इस ब्लथरस बीस से बचा लो, इस नापाक वजूद से। खुदा के लिए मुझे अपने वजूद को गंदगी का ढेर नहीं बनाना। मुझे अपने वजूद को तुम्हारे पनाहों में तरह मामेस बनाना कबूल है, मगर ताफुन ज़दा बनाना नहीं। मुझे तुम्हारा चूना कबूल है, मगर किसी गैर मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के डॉन का चूना कबूल नहीं। वो इसके लफ्ज़ याद करते गहरे सांस लेते अपने अंदर उठती आग पर काबू पाने की नाकाम सही कर रहा था। आई एम कंसिडर्ड यू माई प्योर बींग, but you turned me into your impure extents. What if I am not a Muslim? What is it in Muslims that you choose to is not in me?
belong to this आर्यन खानजादा's possession. मैंने तुम्हें अपना पाक वजूद समझा, मगर मुझे तुमने अपना नापाक वजूद बना दिया। क्या हुआ अगर मैं मुसलमान नहीं? क्या है मुसलमानों में जो मुझ में नहीं है कि तुमने इस आर्यन खानजादा की मलकियत में जाना पसंद किया? वो तैश व आलम से चीख उठाता, What is in it in Muslims that is not in me? I also believe in God. वो स्टेयरिंग जकड़ते चीखता जा रहा था। I also believe in God. वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हुए अब चीख रहा था। He was supposed to be a pure being until she is not become the impure extents of that bloodthirsty beast. JK only wanted his pure extents. हाँ, तब तक पाक वजूद था जब तक वो इस ब्लडथ्रस्ट बीस्ट का नापाक वजूद नहीं बना था। जेके को सिर्फ अपना पाक वजूद चाहिए था। वो स्टीयरिंग को जकड़े अपनी नीली भीगी आंखें विंड स्क्रीन पर गाड़े जख्मी सा हंसते मुस्कुराया था। यू मेड मी डेवल फ्रॉम जेके एंड द डेवल इज नेवर एंडिंग। तुमने मुझे जेके से शैतान बना दिया और शैतान का खात्मा कभी नहीं होता। वो हंसते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। एकदम इसकी गाड़ियों पर गोलियों की बरसात हुई थी। गाड़ी के साइड मिरर से इसने अपने पीछे आते आर्यन खानजादा की गाड़ी देखते चीखते हुए पूरी कुव्वत से मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। आर्यन खानजादा अपनी तरफ के शीशे से सर बाहर निकाले इसकी गाड़ी के पर पिस्टल से कई फायर कर गया था। This devil will die only when it takes another devil along. ये शैतान आज इस शैतान को लेकर ही मरेगा। वो जबड़े भींचते हुए अपनी तरफ के शीशे से जरा सा चेहरा बाहर निकाले अपनी पिस्टल से आर्यन खानजादा पर फायर करने लगा। वो लोग खतरनाक टूटी फूटी सड़कों और गहरी खाइयों के इतराफ में अपनी गाड़ियां दौड़ाते एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की गूंज उन खतरनाक पहाड़ों पर बढ़ती जा रही थी। आर्यन खानजादा सफेद सैंडो और ब्लू जीन्स में मलबूस अपने गीले बालों को दाएं बाएं झटके गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाए हुए जेके की गाड़ी पर फायर कर रहा था। सड़क खतरनाक थी। वो जेके के टायर्स पर गोलियां नहीं चला सकता था। इसकी गाड़ी फिसलते खाई में गिर सकती थी। वो इस जेके की हर कीमत पर जिंदा चाहिए था। आर्यन खानजादा ने चीखते हुए जेके की गाड़ी पर फायर किया। इसकी गोली जेके की गाड़ी के पीछे शीशे को चीरते हुए विंडस्क्रीन से बाहर निकली थी। जेके ने हड़बड़ाते हुए अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को दूसरी तरफ मोड़ा। दूसरी तरफ गहरी खाई थी जिसके नीचे इसी पहाड़ के पानी गिरता झरना की तरह बहते गहरे दरिया में शामिल हो रहा था। जेके की गाड़ी फिसलती हुई खाई से नीचे गिरी थी। आर्यन खानजादा ये देखते हुए अपनी गाड़ी रोकते गाड़ी से निकला था। वो भागते हुए इस जगह पर पहुंचते छलांग लगा गया था। जेके इसी लम्हे गाड़ी से कूद चुका था। गाड़ी बहते दरिया में जा गिरी थी। आर्यन खानजादा दरिया में कूदते बहते दरिया में गुम होते जेके को तलाश करने लगा। जेके जैसा शैतान गाड़ी से कूद चुका होगा वो जानता था। जेके तैरते हुए गहरे दरिया में आगे बढ़ते पानी की सतह पर आते गहरे सांस लेने लगा। आर्यन खानजादा भी बाहर आते अपनी सिल्की नमज़दा बालों में उंगलियां फेर गया था। जेके की हंसी गूंजी थी। आर्यन खानजादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। वो दोनों एक दूसरे को खौफ खून अशाम निगाहों से घूरते एक दूसरे की तरफ बढ़े थे। आज तुझ जैसे शैतान का खात्मा होकर रहेगा। आर्यन खानजादा के मुकाबले आते गुर्राया था। आज मुझ जैसा शैतान तुझ जैसे शैतान को साथ लेकर ही सीधा जहन्नुम में जाएगा। जेके भी जवाबन गुर्राया था। यानी तू मानता है तू तेरे जैसे शैतान की जगह जहन्नुम है। आर्यन खानजादा खूनशान निगाहों से घूरते इस्तज़ाहिया मुस्कुराया था। नहीं, मुझे इस बात का यकीन है तेरे साथ जिस जगह पर जाऊंगा वो जहन्नुम ही होगी। तुझ जैसे ब्लडथ्रस्ट बीस्ट का हेवन में क्या काम। जेके भी जवाबन इसे खूनशान निगाहों से घूरते हंसते हुए अपना सर पूरी कुव्वत से आर्यन खानजादा के सर पर मार गया था। आर्यन खानजादा चीखते हुए पीछे की जानिब पानी में गिरा। जेके का एक असूल है, वार करने में देर ना करो। पहले वार फिर डायलॉग बाजी। वो हंसते हुए आर्यन खानजादा की तरफ बढ़ते इसके सर को दोनों हाथों से जकड़ते फिर से इसे जख्मी सर पर अपना सर मार गया था। आर्यन खानजादा चीखते हुए इसकी गर्दन अपनी आहनी गिरफ्त में पूरी कुव्वत से दबोच गया। जेके भी जवाबन इसकी गर्दन दबोचे आर्यन खानजादा को पानी लिए गुम हुआ। गहरे पानी के अंदर दोनों ही एक दूसरे की सांसों को जकड़े हुए थे। दोनों की सांसें बंद हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को छोड़ते पानी की सतह पर ऊपर आते गहरी सांस लेने लगे। दोनों अपनी सांसें बहाल करते एक दूसरे की तरफ फिर से बढ़े जा रहे थे। अब की बार दोनों ने ही एक दूसरे के मुंह पर पूरी कुव्वत से पंच मारते दोनों के मुंह से खून का फवारा छूटा था। दोनों दर्द से चीखते हुए पानी में गुम हुए थे। दोनों अब तैरते हुए पानी के अंदर एक दूसरे की तरफ बढ़े थे।
जेके ने आर्यन खानजादा के पेट में बुरी कुव्वत से मुक्का मारा था। आर्यन खानजादा दर्द से कराहते हुए पानी में मजीद गुम होते तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। वो पानी के अंदर जेके का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो जेके से कहीं ज्यादा जख्मी था। इसका सर कंधा बुरी तरह जख्मी था, मगर रुशना खान की जान इसके अंदर वॉलपेपर कायम रखे हुए थी, विल पावर कायम रखे हुई थी। रुशना खान ने के जिंदा रहने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी था। 21 साल पहले वो अपने रिश्तों को नहीं बचा सका था, मगर 21 साल बाद वो किसी कीमत पर रुशना खान को मौत के हवाले नहीं कर सकता था। रुशना खान को कुछ भी होता, वो इसके बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता था। कि रुशना खान की मौत में हाकिम खान और रायना खान की बेटी जरमिश खान ही मुलव्विस नहीं थी, बल्कि वो खुद भी था। रुशना खान इसकी वजह से इस हाल तक पहुंची थी। वो फारिस खान की तरह नहीं हो सकता था कि खुद को मौत के हवाले कर दे। इसे अपने रिश्तों को बचाना ही था। रुशना खान की मतलब शाज़मा खान की मौत। शाज़मा खान इसकी सांसों की जमानत थी। आर्यन खानजादा शाज़मा को याद करते तैरते हुए आगे बढ़ते दरिया से निकलते बाहर आया। जेके से ढूंढते हुए पानी की सतह पर आते अपनी जैकेट से पिस्टल निकाले आर्यन खानजादा पर फायर कर गया था। आर्यन खानजादा ने भागते हुए जेके की पिस्टल की निकली गोलियों से खुद को बचाते आगे बढ़ने लगा। वो बड़े बड़े पत्थरों से गुजर रहा था। वही पत्थर इसे गोलियों से बचा रहे थे। वो उनके पीछे छुपते खुद को जेके की पिस्टल से फायर करने से बचा रहा था। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुपते जमीन पर बैठे पत्थर के एक साथ टेक लगाए अपनी पिस्टल के पैंट निकाले। आर्यन खानजादा ने दर्द से कराहते हुए इसमें गोलियां चेक की। वो जेके पर फिर वक्त फायर नहीं कर सकता था। जेके पहले से जख्मी था। जेके इसकी गोली से जख्मी होकर कहीं होश न खो दे। और आज चाबी का पता इसे हर हाल में चाहिए था। डार्क रूम किसी भी सूरत तोड़ा नहीं जा सकता था। वो ब्लास्ट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ था। बहुत कोशिश कर भी ली जाती, रुशना खान अंदर ही हलाक हो जाती। इस डार्क सीक्रेट रूम की चाबी भी किसी सूरत नहीं बन सकती थी। अगर किसी सूरत भी बन जाती, इसलिए बहुत टाइम दरकार होना था। ऐसे दरवाजों की सिर्फ एक ही चाबी होती है, जो वो हो चुका था। मॉम, आर्यन खान ज्यादा दर्द से कराहते आसमान की तरफ देखते शाज़मा खान को पुकारते चीखा था। शाज़मा खान इसके लिए इसकी मॉम नहीं, इसकी जिंदगी थी। बाबा जान, वो फिर से दर्द गर्द से चीखा था। आज तक वो फारिस खान कबीर खान को भूला नहीं था। अगर फारिस खान मुख्तलिफ हालात में अपनी सांसें गंवाता, शायद वो भूल जाता, मगर वो मौत नहीं थी। वो कुछ और था। वो ऐसा दर्द था जिसे वो भूला नहीं जा सकता था। 21 साल पहले इसकी नज़रों के सामने इसके वजूद के ही चिथड़े हुए थे। आज तक वो इन चिथड़ों को इकट्ठा कर रहा था, मगर कर नहीं सका था। वो गहरे सांस लेते अपनी सब जख्मी निगाहें आसमान की तारीकी में गाड़े हुए था। रिश्ते मरने नहीं देते, ना वो मर सकता था, वो इतना जानता था। वो गहरे सांस लेते वहां से उठा। जेके दरिया से निकलते इन पत्थरों पर छलांगे लगाते आर्यन खानजादा को तलाश कर रहा था। आर्यन खानजादा उठते हुए तेजी से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ गया था। जेके आर्यन खानजादा को भागते हुए देखते गुस्से से चीखते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। जेके ने रुकते हुए अपनी भीगी जैकेट उतारकर दूर उछाली थी। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए दूर उतार कर फेंक चुका था। अब वो सिर्फ जीन्स में मलबूस शर्टलेस था। वो पिस्टल हाथ में पकड़े चीखते हुए पत्थरों पर भाग रहा था। इसे आर्यन खानजादा हर हाल में आज मुर्दा चाहिए था। आर्यन खानजादा आगे बढ़ते घने दरख्तों में से एक दरख्त से टेक लगाए छुपते हुए गहरे सांस लेने लगा। आप बुज़दिलों की तरह छुप क्यों रहे हो, बाहर आओ। जेके आर्यन खानजादा को तलाश करते चीखा। तुम जानते हो जेके, जब तक तुमसे चाबी न हासिल कर लूं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। आर्यन खानजादा दरख्त के तने से टेक लगाए गर्चा था। और यही बात तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यन खानजादा, जेके हंसा था। फेयर गेम खेलो जेके, मेरा मुकाबला करो इन गोलियों के बगैर, फिर मानूंगा तुम अंडर वर्ल्ड के डॉन हो। आर्यन खानजादा गुस्से से कुर्राया था। आर्यन खानजादा की बात पर जेके की बुलंद व बांग हंसी गूंजी थी। जेके पता है नंबर 1 क्यों है? वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना जानता है। वो खुद पर काबू पाना जानता है। जेके किसी पर अपनी धाक बिठाने के लिए खुद को ताकतवर जाहिर नहीं करता। वो ताकतवर है, बताने की जरूरत नहीं जेके को। बाहर आर्यन खानजादा, तेरी मौत, मेरा पाक वजूद, मेरा तो मरेगा। इन गोलियों से ही जेके बुलंद आवाज में बोलते गर्जा था। ठीक है, पर चला अपनी पिस्टल, देखता हूँ तेरी पिस्टल से निकली हुई गोलियां मेरा सीना चीरती हैं
आर्यान खानज़ादा ने दबी आवाज़ में गुर्राते हुए अपनी पिस्टल की तमाम गोलियां निकालते हुए अपनी पेन की पॉकेट में डाली। इसने दरख्त की ओट में जेके पर गोलियां चलाई। क्लिक की आवाज़ आई थी। आर्यान खानज़ादा ने 2-3 मरतबा ट्रिगर दबाया था। क्लिक की आवाज़ पर चीखते हुए जेके को दिखाने के लिए पिस्टल पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मार गया था। जेके यह देखते हंसा था। अब तेरी मौत पक्की ब्लड पीस, क्योंकि तेरी पिस्टल से गोलियां खत्म और मेरी पिस्टल में 2 गोलियां हैं जो तेरी जान लेकर रहेंगी। जेके हंसते हुए इसकी दरख्त की जानिब बढ़ा था जहां आर्यान खानज़ादा छुपा हुआ था। वहां आर्यान खानज़ादा को ना पाकर जेके की नीली आंखों में तहीर फैला था। इससे पहले वो कुछ समझते हुए ऊपर देखता, आर्यान खानज़ादा दरख्त के ऊपर से जेके पर छलांग लगा चुका था। जेके आर्यान खानज़ादा के भारी वजन के से बरवक्त खुद को संभाल न सका था। वो मुंह के बल गिरा था। पिस्टल इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। जेके ने मुंह के बल गिरे अपने से कुछ फासले पर गिरी पिस्टल को उठाने की कोशिश की। आर्यान खानज़ादा इसकी कोशिश नाकाम बनाते पिस्टल उठाते दूर फेंक चुका था। जेके ने चीखते हुए रुख पलटने की कोशिश की। आर्यान खानज़ादा ने पूरी कुव्वत से अपनी कोनी इसके जख्मी कंधे पर मारी थी। वो जेके के ऊपर लेटे इसका एक बाजू एक हाथ से बुरी तरह जकड़े दूसरे हाथ से इसके जख्मी कंधे पर बेदर्दी से कोनी से वार कर रहा था। जेके पूरी कुव्वत लगाए सीधा होने की कोशिश कर रहा था। इसकी गर्दन की रगें फूल रही थी। हाथों की नीली रगें अभी उभर आई थी। आर्यान खानज़ादा ने इसे इस तरह जकड़ रखा था, वो अपनी पूरी फोर्स लगाए भी इसे खुद से दूर धकेल नहीं पा रहा था। बता, जेके चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा हलक के बल गरजते इसके बालों को मुट्ठी में दबोचते इसका सर पूरी कुव्वत से जमीन पर मार गया था। जेके की फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर ले, रुशना खान की मौत ही तेरी हार है। जेके चीखते हुए हंसा था। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। आर्यान खानज़ादा ने चीखते हुए इसकी पेशानी एक बार दूर जमीन पर मारी थी। रुशना खान्स डेथ इज योर डेथ। आफ्टर हर पासिंग यू विल डाई ऑन योर ओन। रुशना खान की मौत ही तेरी हार है। इसके मरने के बाद तो अपनी मौत आप मर जाएगा। जेके चीखते हुए अपनी पूरी फोर्स लगाए सीधे होते आर्यान खानज़ादा के जबड़े पर मुक्का मार गया था। आर्यान खानज़ादा इसके वार पीछे की तरफ गिरा। जेके जमीन से उठते हुए आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा भी चीखते हुए इसी लम्हे जमीन से उठते जेके की तरफ बढ़ा तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते एक दूसरे के पेट में पूरी कुव्वत से पंच मार गए थे। दोनों की चीखें जंगल में गूंजी थी। वो दोनों गुत्तम गुत्ता होते एक दूसरे को बेदर्दी से मुक्के मार रहे थे। दोनों की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंज रही थी। आर्यान खानज़ादा ने जेके के वार से अपना बचाव करते जेके की टांगों के दरमियान अपनी टांग पूरी कुव्वत से मारी थी। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा था। आर्यान खानज़ादा ने जेके पर हावी होते इसके ऊपर बैठे इसे गिरेबान से जकड़े जेके के मुंह पर यके बाद दिगरे मुक्कों की बरसात कर दी थी। बता, चाबी कहाँ है? आर्यान खानज़ादा इसके हसास हिस्से पर अपना घुटना पूरी कुव्वत से मारते हुए चीखा था। जेके दर्दनाक चीखा था। दूसरे लम्हे वो हंसने लगा था। आर्यान खानज़ादा ने चीखते हुए इसके जबड़े पर मुक्का मारा। जेके अब की बार आर्यान खानज़ादा का वार अपनी हाथ की हथेली में कैद करते अपना बचाव कर गया था। जेके ने खुद का बचाव करते दूसरे हाथ से आर्यान खानज़ादा की गर्दन दबोची। आर्यान खानज़ादा अपने एक हाथ से इसके चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था। जेके के हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। आर्यान खानज़ादा ने खुद को छुड़वाने के लिए दोनों हाथों से इसका हाथ जकड़ते खुद को छुड़वाने की कोशिश की। वह आर्यान खानज़ादा की गर्दन छोड़ते इसे दूर धकेल गया था। आर्यान खानज़ादा खांसते हुए जमीन पर गिरा। जेके जमीन से उठते आर्यान खानज़ादा की तरफ बढ़ते इस पर झुका ही था। वो अपने सर पर हाथ रखे चीखते हुए जमीन पर सर के बल गिरा था। आर्यान खानज़ादा जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाए इसे पूरी कुव्वत से जेके के सर पर मार चुका था। आर्यान खानज़ादा बुलंद बबांग कहका लगाते जमीन से उठते जेके की तरफ बढ़ा। जेके को लड़खड़ाते हुए उठा के आर्यान खानज़ादा वही पत्थर फिर से इसके सर पर मार चुका था। वो चीखते हुए जमीन पर सर के बल गिरा था। आर्यान खानज़ादा का बुलंद व बांग कहका गूंजा था। आर्यान खानज़ादा ने बहुत बेरहमी से वो पत्थर मारे थे। वो खून में नहला चुका था। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे दोनों पाँव से जकड़े से घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। जेके पेशानी पर दोनों हाथ रखे दर्द से कराहते चीख रहा था। आर्यान खानज़ादा से घसीटते हुए एक बहुत बड़ी खुले मैदान की तरह जगह पर ले आया। आज तेरी बेदर्द मौत रात की तारीकी ही नहीं देखेगी। ये पहाड़, ये दरिया तेरी दर्दनाक चीखों को खुद में समोएगी। जब जब इस जगह पर कोई कुत्ता मरेगा, इसकी चीखने पर तेरी भी चीखें सुनाई देगी। तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। आर्यान खानज़ादा पंजों के बल बैठते हुए झुकते हुए जेके पर अपनी सरसुर्ख निगाहें गाड़ गया था। जितनी मर्जी बेदर्द मौत दे दे, मगर रुशना खान को तो बचा नहीं सकेगा। जेके कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, चाहे मेरी जुबान का कीमा बना
बना बना चाहे इधर का बना, मगर चाबी का पता नहीं बताऊंगा। जेके आर्यन खानजादा की तरफ बेबाक इशारा करते दर्द से कराहते हुए हंसा था। आर्यन खानजादा चेहरा जबड़े भींचे से कहर बार निगाहों से घूरते इसके हसास हिस्से को मसल गया था। जेके बुरी तरह चीखने लगा था। यकदम आर्यन खानजादा के गार्ड्स की गाड़ियां आकर चारों तरफ रुकी थी। वो लोग गाड़ियों से निकलते चारों तरफ फैल गए थे। जेके की मौत का समा आ गया। वो चारों तरफ आर्यन खानजादा के गार्ड्स को देखते जख्मों से चोर हंसता ही जा रहा था। आर्यन खानजादा खड़े होते जबड़े भींचे जेके को हंसते हुए देखते इसे अपनी सिल्की बालों को दाएं बाएं झटका दे गया था। जेके सरनफी में हिलाते आर्यन खानजादा को देखते इशारे करते हंस रहा था। पीछे हट जाओ सब। आर्यन खानजादा हलक के बल चीखा था। सबके गार्ड्स पीछे इसी लम्हे दूर होते पीछे हटे थे। मौदबाना अंदाज में खड़े हुए थे। तेरी मौत सिर्फ मैं हूँ जेके, और कोई नहीं हो सकता। और तुझे एक मौका देता हूँ, लड़ मुझसे। अगर मैं जीत गया तो चाबी का पता बताएगा। अगर मैं हार गया मैं खुद को गोली मारकर अपने नापाक वजूद को तेरा पाक वजूद बना दूंगा। आर्यन खानजादा इसकी तरफ घूमते हुए बोला। जेके हंसते हुए जमीन से उठते लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ा हुआ था। मैं जीत भी गया तुझे चाबी का नहीं बताऊंगा। तू हार भी गया मुझे अपना नापाक वजूद नहीं देगा। हाँ, तेरी मौत के बाद इसे अपना पाक वजूद बना सकूंगा। इस बात का जेके को यकीन है। वो सिर्फ जेके की है। तूने इसे अभी तक नहीं छुआ, मुझे इस पर भी यकीन है। वो सिर्फ जेके की है। जेके ही इसे अपना बनाएगा। जेके आर्यन खानजादा को देखते हुए गुर्राया। आर्यन खानजादा मुठियां भींचते हुए से खूंखार निगाहों से देख रहा था। एक शर्त पर तुझे चाबी का बता सकता हूँ। तुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा। जेके आर्यन खानजादा के खूंखार निगाहों में देखने पर हंसा था। क्या? आर्यन खानजादा की भारी गुर्राहट गूंजी थी। What do you Muslims says when you break a marriage? Yes, you say I divorce you 3 times and then you again the key. तो मुसलमानों में क्या बोलते हैं जब शादी तोड़ते हैं? हाँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वो बोलो और चाबी ले लो। जेके लड़खड़ाते कदमों से आर्यन खानजादा के मुकाबिल आते इसकी सब आंखों में अपनी आंखें गाड़े हुए बोला था। मैं ये बोलूँगा तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? चाबी हासिल करने के बाद तुम्हें ही मौत मिलेगी, वो तेरी कभी नहीं हो सकेगी। आर्यन खानजादा ने इसे दहकती निगाहों से घूरते हुए गुर्राते हुए सवाल किया। आफ्टर मे डेथ योर विल नॉट रिमाइन इधर। मेरी मौत के बाद वो तेरी भी नहीं रहेगी। जेके आर्यन खानजादा को आंख मारते हंसा था। अगर इसे छोड़ना होता तो इसे पता अपना बनाता क्यों? इसे लेने के लिए केप टाउन क्यों आता? आर्यन खानजादा ने गुर्राते हुए मुठियां भींचे सवाल किया। रुशना खान की वजह से वो जेके की बकवास बर्दाश्त कर रहा था, वरना वो जेके की अब तक जुबान काट देता। रुशना खान और 3 वर्ड्स। रिमेंबर यू डोंट हैव टाइम। रुशना खान विल सून लूज हर ब्रीथ। रुशना, या 3 लफ्ज याद रखो, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है। रुशना खान अपनी सांसें खो देगी। जेके आर्यन खानजादा की आंखों में देखती चीखा था, तेरी मौत। आर्यन खानजादा चीखते हुए अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा चाकू जेके के पेट में पूरी कुव्वत से घुसेड़ गया था। जेके दर्दनाक चीखते हुए जमीन पर सर के बल गिरा। वो नफरत भरा जुनून है, वो नापाक वजूद है, मगर है सिर्फ मेरा। इसलिए कभी आर्यन खानजादा मर के भी ये 3 लफ्ज न बोले। आर्यन खानजादा की दहाड़ पहाड़ों में थरथराहट पैदा कर गई थी। You will never say, I accept. This is also something you had said. तुमने कभी ये भी कहा था कि कबूल है, कभी नहीं कहोगे। जेके दर्द से कराहते आंखें मूंदे हल्का सा हंसा था। आर्यन खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते हुए इसके पेट में पेवस चाकू अपना बूट रखते इसे अंदर की तरफ मजीद कुचलेड़ा। जेके की फलक शगाफ चीखें गूंजी थी। बता चाबी कहाँ है? आर्यन खानजादा ने जेके के मुंह पर भारी बूट मारा। जान ले ले, जितनी मर्जी बेदर्दी से मार, नहीं बताऊंगा। जेके बिलबिलाते हुए उखड़ते लहजे में बोला। आर्यन खानजादा से बालों से बेदर्दी से जकड़े अपने मुकाबिल खड़ा करते हुए इसके पेट पर बेदर्दी से मुक्के मारने लगा। जेके की फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। आर्यन खानजादा ने इसके पेट से चाकू निकालते इसके कंधे के जख्म पे में घुसेड़ते इसके सीने पर अपना भारी बूट वाला पाँव मारते हुए इसे धक्का दिया। जेके चीखते हुए जमीन पर गिरा। बता चाबी कहाँ है? आर्यन खानजादा ने अपनी एक गार्ड की तरफ बढ़ते पिस्टल छीनते जेके की टांग पर गोली चलाई। जेके की फलक शगाफ चीख गूंज रही थी। चाबी कहाँ है जेके? आर्यन खानजादा पागल होते चीखा था। A woman turns off minds man। जेके दर्द से चीखते हुए मध्यम सा हंसा था। वो खूनो खून हो चुका था। आर्यन खानजादा ने आगे बढ़ते अपने शूज से छोटा सा चाकू निकालते जेके की गर्दन पर फेरा। जेके गर्दन पर हाथ रखते फलक शगाफ चीखे मारने लगा। आर्यन खानजादा इसकी हालत देखते बुलंद बबांग कहका लगा गया। जेके बिलबिलाते हुए तड़पते हुए चीख रहा था। इसकी दर्दनाक चीखें पहाड़ों को हिला रही थी। ऊपर ऊपर से फेरी है। ये छुरी जब तेरी गर्दन की हर रग काटूंगा तो क्या करेगा?
आर्यन खानज़ादा से तड़पते हुए देखते दहाड़ा था। जेके खून से लथड़ चुका था, हर जगह इसके खून रिस रहा था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रहा था। मेरी मौत, रुशना खान की मौत। जेके गर्दन पर हाथ रखे बमुश्किल बोला। इसके लफ्ज़ सुनाई नहीं दे रहे थे, वो मर रहा था जैसे। चाबी कहाँ है? आर्यन खानज़ादा इसकी बात सुनते चीखा। जेके आर्यन खानज़ादा की तरफ देखते सर नफ़ी में हिला गया था। बता जेके, चाबी कहाँ है, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। आर्यन खानज़ादा पागल होते इसके करीब पंजों के बल बैठा। बताऊंगा तो तू तू बेदर्द मौत देगा। जाते जाते तुझे भी गहरे जख्म देकर जाऊंगा। जेके के लबों से लफ्ज़ टूटकर अदा हो रहे थे। मैं वादा करता हूँ जेके, मैं तुझे नहीं मारूंगा। आर्यन खानज़ादा से होश खोते देखते दर्द कर्ब से चीखा। फिर डील कर मुझसे, मुझे जाने दे, मेरा जेट तैयार खड़ा है, मुझे जाने दे यहाँ से। वो बहुत मुश्किल से बोल रहा था। आर्यन खानज़ादा इस पर झुकते हुए इसके लफ्ज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। जेट? आर्यन खानज़ादा हैरान हुआ। हाँ, मोबाइल दे। जेके ने आर्यन खानज़ादा की तरफ इशारा करते अपना कपकपाता हाथ बढ़ाया। आर्यन खानज़ादा ने अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। इसने आगे बढ़ते जेके को मोबाइल थमाया। जेके खून से तर कपकपाते हाथों से नंबर डायल कर रहा था। वो इस पर कुछ टाइप करते हुए आंखें मूंद गया। जेके आर्यन खानज़ादा चीखा था। जेके आंखें खोलते आर्यन खानज़ादा को देखते मद्दम सहसा टूटी बिखरी हंसी। बता चाबी कहाँ है? आर्यन खानज़ादा ने पागल होते चीखते हुए सवाल किया। जेट पर सवार होकर बताऊंगा। जेके ने गहरे सांस लेते अपनी गर्दन पर रखे बमुश्किल ही बोला था। तू बच नहीं पाएगा जेके, तू रास्ते में ही मर जाएगा। तेरी जेट को पाकिस्तान में उतरने की जगह नहीं मिलेगी। तेरे पास इतनी मोहलत नहीं है कि तू जिंदा रह सके। जाते जाते नेक काम कर जा, चाबी का बता दे। रुशना मासूम है, इसकी जान बचाने से हो सकता है तेरा अगला जहां सुकून से गुजर जाए। आर्यन खानज़ादा ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते बदहवास होते चीखते हुए कहा। आर्यन खानज़ादा की आंखों से आंसू टपकते जेके के खून से लुथड़े चेहरे को भिगो गए थे। आर्यन खानज़ादा को रोते हुए देखते जेके की बिखरी टूटी दर्द से भरी हंसी गूंजी थी। तुम मुसलमान होकर झूठ बोलते हो, मुझसे एक मरते हुए इंसान से झूठ बोलते हो। वो आंखें टूटे लफ्जों से बमुश्किल सांस लेते बोला। तुम्हारा रब फरमाता है। तर्जमा। काफिर लोग बार बार तमन्ना करेंगे क्या ख्वाब होता है अगर वो, यानी हम दुनिया में मुसलमान होते हैं, यानी इसका मतलब हुआ गैर मुस्लिम जन्नत में नहीं जा सकता। वो मुश्किल बोलते अपनी गर्दन पर हाथ रखे हुए था। मेरे पाक वजूद ने जब मुझे गैर मुस्लिम होने की वजह से ठुकरा दिया था तो यहाँ आते हुए तमाम रास्ते सिर्फ तुम मुसलमानों पर सर्च करता रहा। तुम्हारा रब कहता है मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मगर तुम तो मुझे जन्नत का झूठा लालच दे रहे हो। जेके ने बहुत मुश्किल से मध्यम सा कर्ब से मुस्कुराते हुए बोल रहा था। इसकी नीली आंखों से आंसू बह रहे थे। बता जेके, चाबी कहाँ है? आर्यन खानज़ादा रोते हुए चीखा था। इस लम्हे जेके का जेट इधर आकर रुका था। आर्यन खानज़ादा अपनी सुर्ख आंखें मसलते हुए जेट को देखते खड़ा हुआ। जेट से दो स्याह आम निकलते जेके की तरफ बढ़े थे। वो इसे बाजुओं और पाँव से जकड़े जेट की तरफ बढ़ते जेट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आर्यन खानज़ादा खुद पर काबू पाए भीगी आंखों से ये देख रहा था। बता जेके, चाबी कहाँ है? आर्यन खानज़ादा चीखते हुए जेट की तरफ बढ़ा। वो लोग जेके को पकड़े जेट के अंदर दाखिल हो चुके थे। जेके, आर्यन खानज़ादा चीखते हुए जेट की तरफ बढ़ा। जेट का दरवाजा इसे लम्हे बंद हुआ था। जेट तेजी से आसमान की तरफ परवाज भरने लगा। जेके, आर्यन खानज़ादा चीखते हुए आसमान की तरफ देखते जेट के साथ साथ भागने लगा। जेट तेजी से बुलंदी पर जा रहा था। जेके, आर्यन खानज़ादा हलक के बल आसमान की तरफ देखते दर्द कब से चीख रहा था। उसकी निगाहों के सामने गायब हो गया था। जेके, आर्यन खानज़ादा जमीन पर घुटनों के बल बैठे अपने बाल बेदर्दी से नोचते चीख रहा था। आर्यन खानज़ादा के गार्ड मुस्तैदी से इसके करीब खड़े थे। एकदम जमीन पर पड़े मोबाइल फोन की चिंगाड़ गूंजी थी। आर्यन खानज़ादा तेजी से मोबाइल की तरफ बढ़ा जिसने जेके ने कुछ नंबर डायल करते जेट मंगवाया था। आर्यन खानज़ादा ने जल्दी से कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। जेके बेईमानी ईमानदारी से करता है तो ईमानदारी कैसे बेईमानी से कर सकता है? फ़ोन पर जेके की हंसी गूंजी थी। चाबी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। द मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यन खानज़ादा। जेके की फ़ोन पर टूटी बिखरी हंसी गूंजी थी। आर्यन खानज़ादा फ़ोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। इसकी रंगत सुर्ख हुई थी, हाथों की नीली रगें जाहिर हुई थी, गर्दन बुरी तरह फूलने लगी थी, पूरे वजूद की रगें जाहिर हुई थी। मेरे नापाक वजूद। वो फ़ोन पर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर मारते हुए आसमान की तरफ देखते हलक के बल चीख उठा था। ज़ावियार खानज़ादा इसके बिखरे वजूद पर अपनी बाहों में सख्ती से भींचे, इस पर अपनी एक टांग रखे कंबल अच्छी तरह खुद पर लपेटे हुए था। आयश इसकी बाहों में मौजूद कब से सो चुकी थी, मगर वो आज सो ना सका था। आयश के गर्म वजूद को अपनी बाहों में लेते कम ही खुद पर कंबल लेता था। आयश के जिस्म की हरारत इसे कंबल लेने से ही ना देती थी, मगर आज वो इसके सीने से लिपटे भी कांप रही थी। वह इसकी खातिर खुद पर इस पर अच्छी तरह कंबल उड़ा गया था। वो बुखार में तप रही थी। इसके बदन की हीटिंग वो मामूली के दिनों में खुद अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। आज तो वो बुखार से तपते
बारूद बनी हुई थी। ज़ावियार खानज़ादा ने कुछ देर पहले आयश को अपनी बाहों से आज़ाद करते इसके बगैर सोने की कोशिश की थी, मगर वह इसके बगैर सो नहीं सका था। वो कल एक बात मान चुका था, आयश मलिक इसकी ऐसी आदत बन चुकी थी जिसके बगैर वो चैन से नहीं सो सकता था। पिछले 3 हफ्तों से इसके साथ लिपट लिपट कर सोते सोते वो इसके बगैर सोना भूल चुका था। अभी इसे अपनी बाहों में लिए वो पसीने में डूबा हुआ था। वो चाहते हुए भी कंबल खुद से हटा नहीं सका था। वो नींद में भी कांपना शुरू हो जाती थी। ज़ावियार खानज़ादा ने टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाए टाइम देखा, जहां रात के 3 बज रहे थे। वो पिछले 1.5 घंटे से जाग रहा था। ज़ावियार खानज़ादा इसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते हुए अपने चौड़े सीने पर करते अच्छी तरह कंबल खुद पर और इस पर ओढ़ा गया था। बुखार की वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, नाजुक थी। ऊपर से वो बहुत बेरहमी से बिना इस पर तरस खाए इस पर अपनी शिद्दतें ढाते अपना हक ले चुका था। पूरे वक्त में वो मरने वाली हो गई थी। सुर्ख चेहरा इस तरह जर्द हो गया था जैसे किसी ने इसके चेहरे पर हल्दी बखेर दी हो। आज इसकी नाजुक जान इसकी भारी टांग का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपना हक शदोमत से लेते बस पर हमेशा की तरह अपना मुकम्मल वजन डाल गया था। वो इसे बेबसी से इसे भीगी नीली आंखों से देखते सिसक पड़ी थी। वो इसे सजाइया निगाहों से देखते जानबूझकर मजीद वजन इस पर डाल गया था। वो इसे लम्हे आंखें मूंद चुक गई थी। इसके सोने के बाद इस पर से अपना काफ़ी वज़न कम कर गया था। टांग भी हल्की सी रखी हुई थी। इसकी नाज़ुकी देखते वो इस पर अब अपनी टांग भी हटाते इसके नाजुक वजूद को पूरी तरह अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया था। आज पहली बार इसने सोते में इसके नाजुक वजूद को अपने सीने पर ऐसे लिटाया था। आयश की बरहना कमर पर इसके सुनहरे बाल बिखरे थे। ज़ावियार खानज़ादा की मजबूत उंगलियां इसके सुनहरे बेहद सिल्की बालों में नरमी से सरसराने लगी थी। इतने खूबसूरत बाल इसने आज तक नहीं देखे थे। ये शायद औरत ही पहली बार देखी थी जिस पर वो मुकम्मल हक रखते इसकी हर चीज़ को इस्तेहाक से देख सकता था, छू सकता था। ज़ावियार खानज़ादा की नज़रों के सामने आज से 7 माह पहले का इस्तांबुल का वो मंजर याद आया था, जिसमें से इसके साथ इसके घोड़े पर आगे की तरफ बैठी इस लड़की के सुनहरे बाल इसके चेहरे से टकरा रहे थे। किसी लड़की के जिस्म की खुशबू ज़ावियार खानज़ादा की सांसों में पहली बार उतरी थी। वो इस खुशबू का इस पल एडिक्ट होसा हुआ था। अब वो गहरे सांस लेते वही खुशबू आयश के बालों और जिस्म की खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। ज़ावियार खानज़ादा के समातों में इस लड़की के लफ्ज़ गूंजे थे, चीख ज़रूरी चीख ज़रूर रही हूँ, मगर बेल्ट अभी तक मेरे हाथों में है। तुम जैसा भरपूर खान इस नाजुक औरत के नाजुक हाथ से बेल्ट नहीं छुड़वा सका। ना घोड़े को लगाम डालना आसान है, ना औरत को। घोड़ा बिदक जाए तो तुम्हें उठाकर जमीन पर पटक देता है, औरत बिदक जाए तो तुम जैसे मर्दों को अपने कदमों की जीनत बना देती है। वो जबड़े भींचे इस लड़की के लफ्ज़ याद करते आयश के बालों में उंगलियां फेर रहा था। छोड़ो बेल्ट, ये जानवर ऐसे नहीं सीधे होते। इस लड़की ने बेल्ट छुड़वाते अपना गुर्राना याद आया था। जानवरों का पता नहीं, मगर इंसान को जानवर बनते कैसे रोकते हैं, ये मलकाइन को बखूबी इस मलकाइन को बखूबी पता है। मर्द को इसकी औकात दिखाना मुझे भी खूब आता है। वो जवाबन को राते हुए बेल्ट अपने हाथ में लपेट गई थी। यू शेमलेस खान, ब्लडी रास्कल। इस लड़की गालियां गालियां ज़ावियार खानज़ादा के समातों में शदोमत से गूंज रही थी। इस्तांबुल की नारंगी शाम में घोड़े और लड़की समेत में समंदर में उतरते हुए इस लड़की की शक्ल तो वो ना देख सका था, मगर इस लड़की की दूधिया भीगी कमर पर वो स्याह तिल वो देख चुका था। ज़ावियार खानज़ादा की खुरदरी उंगली आयश की कमर के इस स्याह तिल पर अब सख्ती से सरसरा रही थी। वो रुख पलटे आयश को नरमी से अपने नीचे करते इस पर हावी हुआ था। आयश मलिक, मलकों की बेटी, सारा गुरूर तनतना तुम्हारा तोड़ दिया है। मर्द कभी औरत के कदमों की जीनत नहीं बनता। वो सरदार ज़ावियार खानज़ादा कभी किसी के सामने नहीं झुकता, वो भी एक औरत के सामने। ये झुके ये मर्द की तौहीन है। वो इस पर झुकी, इसके खूबसूरत नकूश पर गहरी निगाहें गाड़े बोला, तुम सिर्फ ज़ावियार खानज़ादा की ज़रूरत का सामान है। सुना है जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मैसर हो जाए इसकी तलब घट जाती है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा खुमार भी किसी बोसीदा पेंट की तरह उखड़ने लगेगा, और तब तक तुम्हारी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी भाई को मौत के घाट उतारते तुम्हें आज़ाद करूँगा। वो इसके खूबसूरत नकूश पर उंगलियाँ नरमी से फेर रहा था। तुम्हारे नाजुक जान को मज़ीद अज़ाबों से नहीं गुजरने दूंगा, मगर जब तक ज़ावियार खानज़ादा की हो तब तक तो ये अज़ाब सहने पड़ेंगे। आखिर खुद ही इस जहन्नुम में तुमने उतारा है, जलना तो पड़ेगा मेरी जान। वो इसके गहरे नकूश को देखते मध्यम सा मुस्कुराते हुए तकिए पर सर रखते इसके नाजुक वजूद को फिर से अपने चौड़े सीने पर मुंतकिल कर गया था। वो इसकी सांसों के मध्यम रक्स को बेहद करीब से सुने बगैर नहीं सो सकता था, ना इसके वजूद से लिपटे बगैर सो सकता था। वो इसके नाजुक वजूद को सख्ती से खुद में भींचे कंबल अच्छी तरह इस पर ओढ़ते आंखें मूंद गया था।
چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.